Hello everybody, namaste and wishing you all a very happy Independence Day guys. 77th Independence Day की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को, okay? And you wanted to hear from me, you were requesting me to make a video and I thought what could be a better day than today when we all are, celebrating our Independence Day, feeling proud of our freedom fighters, our army, navy, and our air force to come and do some reading on our own माँ भारती. तो चलिए देखते हैं माँ भारती अभी क्या चीज़ सिचुएशंस चल रही है. इंडिया इज़ रियली कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी पावरफुल नेशन. वी ऑलरेडी हैव आवर टारगेट सेट बाय आवर वेरी वेरी पावरफुल लीडर आवर नरेंद्र मोदी जी. तो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आने, अभी कैसी सिचुएशन चल रही है इंडिया के साथ और आगे आने वाले एक साल में हाउ थिंग्स विल बी विथ आवर ओन मदर इंडिया, है ना. बिकॉज आई फील दैट इफ when Mother India grows, everybody grows, So let's do this reading. This is a new deck and why not use it for Mother India? I think this deck came only for her because this is a modern day witch tarot. Modern witch tarot, something like that. What is the name? Okay, I don't have the cover box here. But let's do this. These are, you just have female characters in this deck. तो मुझे लगता है कि आई थिंक मे बी इट वॉज मेंट टू बी यूज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर आवर ओन माँ भारती. तो चलिए देखते हैं. एंड इवन इज लाइक माँ भारती, दिस इज द थ्री ऑफ वॉन्स कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक. इवन एज वी आर गेटिंग स्टार्टेड विथ doing the reading, Three of Wands is all about you have done a new beginning has started, you have done the preparation, you have done the planning, and now you are just waiting for your ships to arrive because you are prepared with everything. The cargoes will come, you are ready to go guns blazing and shining. And this is Ma Bharati, King Queen of Wands, ready to shine her light. And yes, India is coming across as a very powerful nation where everybody is going gaga over our own Prime Minister. तो चलिए देखते हैं कि इस powerful situation में कैसी रहेगी हमारी एनर्जीज. हम ये देखने की कोशिश करेंगे. So let's do the readings. God's guardians angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit guides, Ma Durga, Ma Kali, Om Ganesha Namah, Jai Bajrangbali, my dear friend, dear spirit of all my guardian angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for our own Maa Bharati, Mother India, how things are with her right now and how things are going to be from here on till next 1 year, till next 15th of August. कैसी चीज़ें रहेंगी, क्या कुछ होने वाला है, हमें बताइए. Dear angels, we thank you so much for this guidance. Thank you so much. Let's take this card. Two of Wands. तो Three of Wands पे बात हम कर ही रहे थे और यहाँ पे Two of Wands आ गया है. यानी कि yes, lot of planning is going on, lot of action, lot of new energy, lot of vision planning हो रहा है. आप समझ रहे हो, जो इंडिया का अभी जो माँ भारती हैं या मदर इंडिया जो है हमारी, किस तरह की एनर्जी उनके सेंटर में बैठी हुई है. एक फायरी एनर्जी है, एक एंथुजियास्टिक एनर्जी है, एक जो फ्यूचर की तरफ जो एक आशावान होना होता है ना कि अब हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू बी अंडरडॉग्स एनीमोर. बिकॉज डू रिमेंबर दैट दिस इज दिस मदर इंडिया इज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन with thousands and thousands years of history. ये देव भूमि है, right? And we have been underdogs and we've been slaved and done all those things. We have played the underdog for a very long time and now ये समय आ गया है कि हम and she is wearing absolutely new attire. She is in this modern she is in this very modern day energy. जो बोलते हैं ना कि कदम से कदम मिला के तो चलना नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी कदम से कदम, more like leading the way, leading the world, and she is all set with all the plannings. तो अभी जो इंडिया का सिचुएशन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा इट्स लाइक क्रैडल ऑफ जहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं.
प्लानिंग हो रहा है, एक विजन प्लान हो रहा है, आगे में एक कंट्री को कैसे लेके जाना है, क्या नहीं करना है, ये एक सेंटर में है. चलिए, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग हियर. Oh my goodness, Queen of Wands. Did you see? Okay, this is not Queen of Wands. This is actually King of Wands. So हमने King of Wands और Three of Wands देखा था, और देखो हमने शफल करने के बाद हमारी जो एनर्जीज आ रही है बिल्कुल वॉन्ड वाली एनर्जी है, यानी कि एक मोमेंटम आ गया है इंडिया में. इंडिया इज अनस्टॉपेबल विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर. एंड इंटरेस्टिंगली ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये हमारे मोदी जी का एनर्जी है, जहां पे ही इज टोटली अनस्टॉपेबल. एंड वी हैव ऑल सीन हाउ ही इज बीन अपलॉडेड बाय एंड लुक्ड अप टू बाय वर्ल्ड लीडर्स. And he is topping the charts when it comes to leadership. तो यहाँ पे देखिए कि कैसे मोदी जी जो है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अपने प्लानिंग पे खड़े उतरे हुए हैं. यू नो लाइक खड़े उतरने ना भी, इट्स लाइक यू नो व्हाट डू आई इवन से, इट्स लाइक यू नो ही इज सो फोकस्ड ऑन द प्लानिंग, और उनको कहाँ पे ये मदर इंडिया माँ भारती को कहाँ लेके जाना है. ही इज वेरी फोकस एंड उनके हाथ में पूरा कमान है. और इन पे उनकी, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो आया है ये प्लानिंग विजन वाला कार्ड है, यू नो हैविंग अ विजन फॉर द कंट्री. एंड ही इज द पर्सन हु इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन विजन ऑफ द कंट्री, ताकि इधर उधर यू नो स्टीयर ना हो पाए, इधर उधर भटक ना जाए. जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है, जो हमारा लीडिंग यू नो जो विश्व गुरु बनने का प्लान है हमारा, जो फर्स्ट टॉप 3 इकोनॉमी बनने का प्लान है, वो इधर उधर ना हो जाए. तो राइट देयर एट द सेंटर ऑफ द रीडिंग, टेकिंग अ टोटल कमांड ऑफ द सिचुएशन, कहाँ पे लीड करना है, और हम बिल्कुल वहीं पे पहुंचेंगे. तो ये 2 और 1 3 बन गए हैं. एंड दिस इज व्हाट किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट. सो ये जो है हमारे माँ भारती की जो एनर्जी है ना, ये हमारे सेंटर में है. अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप, फायरी लीडरशिप, इंपॉर्टेंटली यू नो अ लीडरशिप विच इज वेरी गुड विथ डिप्लोमेसी, विथ पीपल, एंड यू नो गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस, देयर ट्रस्ट, पीपल लुकिंग अप टू हिम, and being very bold, very enthusiastic, traveling, movement, पैशन, फायर, ये सारी चीजें हमको आज महाभारती में दिखती हैं. जो एक स्ट्रांग लीडरशिप हमको हमेशा चाहिए था. एंड दिस स्ट्रांग लीडरशिप इज व्हाट it doesn't mince his word when it comes to you know talking about your own handful of sky, right? It's no more like you know that way. चलो ठीक है, सेंटर में देखते हैं डेविल, सबकॉन्शियस लेवल में 2 ऑफ कप्स. यहाँ पे है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स. काफ़ी मेहनत हो रही है यहाँ पे भी, काफ़ी स्ट्रांग डिप्लोमेसी हमें दिख रही है. यू नो दूसरे नेशंस से मिलना जुलना, दूसरों को हेल्प करना. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट इट्स नॉट ओनली अबाउट लिविंग इन योर शेल. You understand? India is no more living in a shell. She's extending hands outward. वो दूसरों से दोस्ती करना, दूसरों को help करना, अपनी you know she is becoming very confident of who she is. She's becoming very confident of you know the very fact that she has so much to offer. ये बात तो मोदी जी ने बहुत बार बोली भी है कि you know we have so much to offer to the world, and we with our population as our strength, diversity as our strength, there is so much that we can offer to the world, and the world can also you know come and benefit from us, and like that. So with all this you know manufacturing units being set up in India, it's almost like shaking hand. और ये आप अगर देखें तो 2 of cups की जो एनर्जी है, जहाँ पे you know India is becoming more and more favorable nation for investments, and you know the industries all over, multinationals are looking forward to setting up their manufacturing units in India. ये सारी चीज़ें हो रही हैं. आई थिंक एप्पल ने भी सेटअप कर दिया है, टेस्ला से बात हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हैं इंडिया ऑफर कर रहा है. और लोग भी यू नो पीपल आर ऑल्सो वार्मिंग अप टू इंडियाज न्यू कॉन्फिडेंट यू नो अवतार. तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है. India is offering, and the world is, it's more like India is no more hesitating. India has come out of the shackles of slavery, all the inferiority complex. India is standing confident on who she is, and she believes that she has so much to offer to the world, and the world is also acknowledging कि yes she is somebody. तो ऐसा ही तो होता है ना, जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो दूसरे भी आपका वो कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं. तो both of them coming together, this is India leading and world accepting. Beautiful. But we have this subconscious level पे devil है, and we will see कि ये devil कौन है, क्या है, और किस तरह से हमारे पूरे डायनामिक्स को माँ भारती के इम्पैक्ट कर रहा है. कौन है ये devil और क्या क्या इसकी इच्छा है. अगेन यू सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि
ये जो भी प्लानिंग हो रही है, किंग ऑफ वॉन्स जो भी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिप्लोमेसी उनकी मस्त चल ही रही है यहाँ पे, taking India to the world opening its hands and embracing India, because of course you cannot ignore when you are such a big populous country with a very strong leadership, you do have a strong strong backing up and stuff like that, and world acknowledges that. guys यहाँ पे देखो मस्त मेहनत चल रहा है. 8 of Pentacles बिल्कुल जो 2 of Wands की जो एनर्जी है ना, जो प्लानिंग है, विजन प्लान है, हर चीज पे यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में मस्त मेहनत चलते रहता है. Like yes, India is working on it, working to find, kind of getting back to where she her lost glory maybe. Yes. and यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे जो पेंटिकल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स का काम चल रहा है, यानी कि ये जो काम चल रहा है इट्स टोटल डेवलपमेंट. द मनी पार्ट है कि बस डिप्लोमेसी ही से, आखिर डिप्लोमेसी किस लिए होता है? ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मनी फ्लो करेगा इकोनॉमी, और मनी से ही फिर सारी खुशहाली होगी, चीज़ें लाइफ standard of living बढ़ेगा, and our poverty line will finally reduce and there will be no poverty line. So वो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इकोनॉमी पे काम चल रहा है, पैसे पे काम चल रहा है, and all those things. अगेन यहाँ पे देखो नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, और नाइट ऑफ वॉन्स इज लाइक चार्जिंग टू अस. तो अभी आगे में क्या होने वाला है ये आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स की एनर्जी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट 15 अगस्त तक का एनर्जी पूछा है. तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में क्या होने वाला है? बहुत जोरों और शोरों से काम होने वाला है सारे विजन पे, सारे प्लान्स पे, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्स जो है ये 2 ऑफ वॉन्स की तरफ लपक रहे हैं, यानी कि जो विजन है. और यहाँ पे भी देखो 2 ऑफ वॉन्स जो है इसके हाथ में जो बेसिकली रहता है, ये जो 2 ऑफ वॉन्स का जो इंसान बंदा है, यहाँ पे उसके हाथ में एक वर्ल्ड ग्लोब रहता है. एंड दिस इज द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट ही वांट्स टू टेक इंडिया टू द वर्ल्ड एंड ही वांट्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट. तो दिस इज द प्लान दिस इज द विजन. उन्होंने बोला भी है कि हिज नेक्स्ट vision is to, we are already in the first top 5 economies, his next vision is to bring India in the top 3 economies of the world, and this is the vision plan. और ये बस प्लानिंग ही नहीं है, ये बस डे ड्रीमिंग नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ये जो आप कॉन्शियस लेवल पे देखो, ये बस प्लानिंग नहीं है कि बस 15 अगस्त का भाषण था दे दिया हमने भाषण. यहाँ पे बहुत डिटेल्ड प्लानिंग चल रही है कॉन्शियस लेवल पे. 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही बता रहा है कि यहाँ पे जो विजन है, जो कि किंग ऑफ वॉन्स का विजन है कंट्री के लिए, माँ भारती के लिए, उस पर कॉन्शियस लेवल में ज़बरदस्त मेहनत होती है. एक डिटेल्स को फाइन ट्यून किया जाता है, उसको परखा जाता है, एंड देन ऑल द वर्क हैपन्स. और यहाँ पे बस ऐसा नहीं है कि बस प्लानिंग होगी, बस बातें होंगी. कॉन्शियस लेवल पे काफ़ी काम चल रहा है, डिटेल प्लानिंग हो रहा है, एंड देन वेयर इज इट गोइंग, इस पे काम भी होगा. बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट अनलीशिंग योर सेल्फ, गोइंग गन्स ब्लेजिंग एंड एक्टिंग ऑन द प्लान, एक्टिंग ऑन द विजन. और ये जो डिप्लोमेसी है ये हमको हेल्प करेगी. तो डिप्लोमेसी तो आप जान ही रहे हो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया में व्हाट हैपेंड, एंड देन इन अमेरिका आवर प्राइम मिनिस्टर जस्ट हैड अ विजिट इन अमेरिका. ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अभी और भी काम होने वाला है, और चीज़ें बहुत ही फराटे से आगे बढ़ने वाली है. एटीट्यूड हम देख लेते हैं. एटीट्यूड में देखो जस्टिस, एंड जस्टिस इज ऑल अबाउट प्योरिटी. इट इज अबाउट गेटिंग व्हाट यू आर. अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, एटीट्यूड में जस्टिस का होना यही बताता है कि देयर इज अ प्योरिटी ऑफ इंटेंशन व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट. एटीट्यूड क्या है कि मैं करूँगा, एंड एक बोलते हैं ना कि एक प्योर इंटेंशन के साथ और एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ. और डिटर्मिनेशन का तो ये सारा कार्ड ही है जहाँ पे आप प्लान करो. दिस 3 वॉन्ड कार्ड एंड प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स, डूइंग द हार्ड वर्क, and not just the hard work, not just the planning, not the vision plan, not the long term planning, not just the hard work, not only the economics of everything, but also soft power. ये है मोदी जी का soft power. Cups, emotions, relationship, emotional intelligence, ये है उनका soft power. ये है उनका vision, ये है उनकी leadership, और ये है उनका hard work, and ये है उनका action लेना. और यहाँ पे है उनका इंटेंशन, वेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स,
क्या करना है, ये एग्जीक्यूट करना है, ये करेंगे। अ प्योरिटी ऑफ थॉट्स, अ प्योरिटी ऑफ थॉट्स के बारे में, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, इसके बारे में हम क्या बोलते हैं, जैसे नीयत वैसी बरकत। हम बोलते हैं कि जब इंटेंशन सेट करो तो यूनिवर्स भी कंस्पायर करता है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो वही सारी चीज़ है, अ टोटल प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस, जस्टिस, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या है। ओह वाओ, एनवायरनमेंट में है हमारे लिए विशेस फुलफिलमेंट। तो आप देख रहे हो कि माँ भारती इज गेटिंग गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, गन्स ब्लेजिंग गाइज। आई विल हैव टू हाइड दिस इमेज बिकॉज इट्स गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके, तो मेरे पास मेरी दुर्गा माँ का ये चरण पादुका है, तो मैंने यही रख दिया है। एंड व्हाई नॉट, आई थिंक जैसा मैंने बोला भी था कि हमारा देश तो देवभूमि है। यहाँ पे यू नो वी आर अ ब्लेस्ड सोल एंड आई थिंक दुर्गा माँ साक्षात आ गई हैं हमारे सारे सपनों को विश फुलफिलमेंट। आई थिंक यू नो आई जस्ट फील दैट आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू हाइड दिस naked image over here, so I thought okay why not put my Durga Ma's charan over here, and I just feel that, और हम बोलते भी है ना कि भगवान के चरण पड़ गए तो हर चीज़ यू नो उससे शुभ कुछ नहीं होता है। तो स्टार कार्ड पे माँ के चरण को पढ़ना, मैं तो यही बोलूँगी कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स, कि हमारे सारे सपने सच होंगे एंड इट इज़ ब्लेस्ड, यू नो देयर इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑन जो भी हमारा ड्रीम्स है, विजन है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप विच आई थिंक वी शुड एब्सोल्युटली वैल्यू गाइज। ओके, वी हैव गॉट द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी शुड वैल्यू इट। और जब हमारे इंटेंशंस नेक हैं, जब हम कुछ एक विजन को फॉलो कर रहे हैं विथ ऑल दी ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, तो बिल्कुल वही बात है कि जब हमारे इंटेंशंस भी सही रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और हम मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस इंटेंशन कर रहे हैं गाइस। किंग ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स एंड टू ऑफ वॉन्स इज ऑल अबाउट कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग इट आउट, वर्किंग हार्ड, प्लानिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ। आज माँ भारती के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जो बहुत क्लैरिटी के साथ सोचता है और बहुत ही एग्रेसिव है। You know, King of Wands is all about working hard, going in the field and working hard, and that is synonymous with, you know, Modi ji working so many hours in a day, which we all know. ये उनका soft power है, emotional intelligence, the soft diplomacy, you know, and this is really showing the diplomacy, the strength of our diplomacy of our King of Wands, जहाँ पे आज वो अमेरिका के भी फ्रेंड है, आज इंडिया अमेरिका का भी फ्रेंड है और रशिया का तो फ्रेंड हमेशा से रहा ही है। दिस इज द पावर ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हिज सॉफ्ट पावर, हिज डिप्लोमेसी, हिज एक्सेप्टिंग इंडिया एंड टेकिंग इट टू द वर्ल्ड। और हमारे सपने भी सच हो रहे हैं, यूनिवर्स भी हमें ब्लेस कर रहा है और रादर माँ दुर्गे माँ भारती को ब्लेस कर रही है। माँ दुर्गे का ब्लेसिंग हमेशा माँ भारती के साथ रहेगा, ये मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस समथिंग दैट हैपेंड हियर। लेट्स मूव ऑन। होप्स एंड फियर्स में क्या है, किसी चीज का डर है। अब किस चीज का डर हमें माँ भारती को सता रहा है, हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल में माँ भारती के कुछ डेविल्स हिडन हैं और ये डेविल्स क्या हैं, कैसे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। कॉन्शियस लेवल में तो ये है, किसी चीज का डर है माँ भारती को। किस चीज का डर है, क्योंकि यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में कुछ डर भी हिडन है और शायद ये डर डेविल की तरफ से ही आ रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बूम। तो आगे आने वाले एक साल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। आई थिंक मनी वाइज अगर आप देखें यहाँ पे तो मनी पे ही काम हो रहा है। यहाँ पे प्लानिंग चल रही है यू नो मल्टीनेशनल्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने के लिए, ये सारी चीजें बातें चल रही हैं। तो अभी आने वाले नेक्स्ट अगस्त तक आप बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा इकोनॉमिकली इंडिया स्ट्रांग होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट यू नो इंडिया बिकमिंग इकोनॉमिकली स्ट्रांग। सो कैन वी से दैट यू नो आने वाले एक साल में काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है। ऑल राइट, बट यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि माँ भारती किसी चीज से डर रही है। क्या ये डेविल ने इनको पुश करके रखा है? व्हाट इज दिस डेविल एनर्जी? बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे। माय गुडनेस, डू यू सी दिस? तो बिल्कुल बैलेंस, ये सारी चीजें आ रही है माँ भारती के लिए। आप देख लो, एस ऑफ वॉन्ड भी आ गया है, दूर नहीं है, पर यहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो रही है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये झूठ मूठ का कंफ्यूजन क्रिएट करना बोलते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज माइंडलेस कंफ्यूजन,
एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट करने का सिचुएशन रहता है, बना हुआ रहता है। हम जानते हैं इस तरह का सिचुएशन हमेशा बना रहता है। चलो कोई बात नहीं है, एक न्यू बिगिनिंग है एंड देन देयर इज अ बैलेंस एंड थ्री ऑफ कप्स। एंड इंटरेस्टिंगली जो ये कार्ड मैंने लिया है ये एक डाइवर्सिटी का कार्ड है, जहां पे इफ यू सी यू हैव द ब्लैक वुमन, यू हैव द वाइट, यू हैव द ब्लॉन्ड, एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर टू सेलिब्रेट। और यही विजन है इस इंडिया का, जो कि मोदी जी बोलते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंगली जो ये कार्ड लिया, जो कि मैं फर्स्ट टाइम भी यूज कर रही हूँ, और ये जो डेक है, दिस इज ऑल वुमेन्स डेक, ऑल लेडीज डेक। यू हैव ऑल द कैरेक्टर्स, यहाँ तक कि अगर आप ये किंग ऑफ वॉन्स भी देखोगे तो शी इज अ लेडी। तो ये महाभारती की रीडिंग मैं इसीलिए इस कार्ड से कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ इस कार्ड को यूज करना। और यहाँ पे अगर आप देखो कि एक जो पेज ऑफ वॉन्स है, जो एक न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, यहाँ पे ये एक न्यू बिगिनिंग है न्यू इंडिया का, जहाँ पे सारे लोग, सबका साथ और सबका विकास हो, और लोग इस बैलेंस को ले पाएं, और इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें करने की कोशिश होती है, इन सारी चीजों को लोग इस चक्कर में ना पड़े। यू अंडरस्टैंड, एवरीबडी कमिंग टुगेदर, और ये हो भी रहा है। पर यहां पे डेविल हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे व्हाट इज दिस डेविल सिटिंग एट द सबकॉन्शियस ऑफ महाभारती, और ये है क्या? तो इसके लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे। Dear angels, we thank you so much for divine guidance and blessings coming, for helping us understand what is this devil. अगर आप डेविल देखो, एक्सक्यूज मी, आई वांट सम वाटर। ऑल राइट, ये बेड़ियों को देख के, ये जो आप शैकल्स देख रहे हो ना, इस शैकल्स को देख के मुझे याद आया कि हम भी गुलाम थे, और गुलामी की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि आपके हाथ में वो हथकड़ियां डाल देते हैं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो डेविल है, यहाँ पे जो ये हथकड़ियां हैं, आप लिटरली टाइड नहीं हो, यू आर नॉट रियली शैकल्ड। यू आर नॉट शैकल्ड टू द पोल्स, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, एंड यू आर नॉट रियली शैकल्ड। यू कैन रन अवे, यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस शैकल्स। तो मुझे लगता है कि ये जो डेविल और ये शैकल्स जो मेरी नजर पड़ी है इससे ये जो है, ये सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं अभी भी जो है ना, एक गुलामी की मानसिकता है हमारे में, या फिर जो एक 1200 सेंचुरी से लेके हम लोग 1800 सेंचुरी तक, फर्स्ट द मुगल्स रूल्ड अस एंड देन द ब्रिटिश ऑफ कोर्स। तो एक जो हम वी आर नो मोर स्लेव्स, वी आर नो मोर, वी आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली। एंड ये जो रीडिंग है मैं इंडिपेंडेंस डे पे कर भी रही हूँ। तो हमें ये सोचना भूल जाना चाहिए कि वी आर स्टिल टाइड टू आवर पास्ट, जो हमारी गुलामी की स्टोरी है। वी वर गुलाम टू दिस मुगल्स एंड दिस ब्रिटिश, नाउ वी आर नो मोर गुलाम। अगर लिटरली देखो इस कार्ड में जो ये डेविल, ये जो हथकड़ी है यहाँ पे, ये जो शैकल्स हैं, ये जो बेड़ियां हैं, ये लिटरली टाइड नहीं है किसी पोल से। यू पीपल कैन, दीज टू कैन एक्चुअली मूव अवे फ्रॉम दिस डेविल। तो हम ये जो बेसिकली है, ये एक माइंडसेट है, ये एक और ये डेविल होता भी एक माइंडसेट, जो सेल्फ डाउट का माइंडसेट होता है ना, कि अपने आप को डाउट करना। और यहाँ पे आप अपने आप को डाउट ही तो कर रहे हो, इवन दो यू आर लाइक फाइटिंग, बट it's the same thing, like it's no more India, it's no more like she can be pushed to the corners. समय आ गया है जब माँ भारती, जो कि देवों की भूमि भी रही है, उसको उसका ड्यू मिले, because she has been pushed to the corners for a long time. अब समय आ गया है कि she steps in her power. एंड आप अपने पावर में कैसे स्टेप करोगे, जब आप ये गुलामी की मानसिकता जो है, इससे आप बाहर निकल आओगे। और जो ये गुलामी की मानसिकता है ना, ये सबकॉन्शियस लेवल में आना हमें यही बताता है कि सामने से तो ऐसा नहीं लगता है कि वी आर स्लेव्स एनीमोर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, हम लोगों ने इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया है, हम स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, एंड ऑल दैट फैंसी स्टफ्स वी डू। बट अनलेस till you accept yourself, your roots, your authenticity, you are just washing yourself away in all this flids, all this fancy या फकाट बोलिए, जो भी बोलिए आप। तो यहाँ पे यही चीज़ है, हमें अपनी जो ये गुलामी की मानसिकता है ना, जो कि हमारा पावर लेता है,
इस चीज़ से हमें फ्रीडम चाहिए है और हमारे सब कॉन्शियस में है, क्योंकि अब इतने साल गुलामी हुई है, आई मीन लाइक 800 ईयर्स, 1000 ईयर्स, तो ये तो डेफिनेटली एक सबकॉन्शियस पैटर्न है, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है हमारा। तो इस चीज़ से हमें, और यही चीज़ हमें डराती है, बाकी और तो कुछ हमें नहीं डरा पाता है। हम काम करने में सही हैं, हमारे इंटेंशंस सही हैं, और हमारा इंटेंशंस सही है तो यूनिवर्स भी, और सामने में अगर देखो तो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। द स्टार्स इज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू आफ्टर ऑल द पावर बीइंग टेकन, पुश टू द कॉर्नर, शोव्ड अंडर द कारपेट, यू नो। बट ये गुलामी की मानसिकता ही शायद हमें आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे है और उसकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फिर भी चलिए हम एक बार डेविल की एक क्लैरिफायर कार्ड ले लेंगे और जानेंगे कि क्या है। द एम्प्रेस इन रिवर्स है यहाँ पे, एम्प्रेस इन रिवर्स। एम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड इंडिया वॉज known for being the सोने की चिड़िया, राइट? इंडिया इज नोन फॉर बीइंग सोने की चिड़िया, और एम्प्रेस का कार्ड आना इज ऑल अबाउट ग्रोथ, एंड इट इज समवेयर लाइक, यू नो, इंडिया इज नॉट ट्रस्टिंग हु शी इज, लाइक लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, गिविंग इन टू द पावर ऑफ अदर पीपल। यू नो, ये डेविल जो इनको बताता है, ये दोनों जो है ना, डेविल इनको जो बताता है ये वही मानते हैं, क्योंकि दिस डेविल हैज हिप्नोटाइज्ड देम टू बिलीव दैट दे आर नॉट गुड इनफ। एम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस। जैसे बोलते हैं ना कि देवभूमि है, माने कि सोने की चिड़िया है। एंड आई थिंक आई रिमेंबर समथिंग, शायद आप लोगों को भी पता होगा, शायद इंग्लैंड का कहीं का, यू नो, ही वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड और समबडी, एंड ही मेड दिस रोल्स रॉय कार, एंड वन इंडियन राजा हैड गॉन देयर, तो उसने बोला कि ये कार तुम्हारे लिए नहीं है, तो उन्होंने 5 कार खरीदा और उसे फिर झाड़ू लगवाया था। यू रिमेंबर दैट? तो वही चीज़ है कि अपने आप पे बिलीव करना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एम्प्रेस इंडिया शुड नो हु शी इज़। People of India should know who they are, what is their roots, where they come from. They should be so proud of them. और यहाँ पे जो Empress है, she is not sitting all alone. She is sitting with her baby and as a nurturing mother. तो आप देख रहे हो कि भारत माता जो है यहाँ पे भी अपने बच्चों के साथ ही है, and mother is all about her kids. Mother is synonymous with her kids. There is no kids, there is no mother. तो यहाँ पे भी देखो मदर नेचर, मदर अर्थ, मदर नेचर में, और यहाँ पे हमारी माँ दुर्गे भी हैं। तो कैसे ये, यू नो, ये तीनों माताओं का समावेश है ये रीडिंग। तो मदर अर्थ सिटिंग इन द मदर नेचर, लैप ऑफ मदर नेचर विथ हर किड, ब्लेसिंग्स ऑफ मदर, माँ दुर्गे इज लाइक, यू नो, knowing the power of who we are and not giving into the गुलामी का shackles। तो यही है, I mean we should know what is the devil energy, empress in reverse। devil कौन सा, ये devil हमारा क्या power ले रहा है? ये devil हमें convince कर रहा है कि we are not that abundant, we are not that developed and we need to look up to somebody else for our development। अब जब एम्प्रेस इन रिवर्स होता है तो एम्प्रेस अपने क्रिएटिविटी में टैप्ड इन नहीं रहती है, अपने पे डाउट करती है, अनमनी सी रहती है, फ्रस्ट्रेशन में रहती है। पर यही चीज़ को बदलना है। ये जो डेविल हमारे अंदर बैठा है या फिर सामने में जो बैठा है, जो हमें बताता है कि हमारी संस्कृति सही नहीं है, हम इन सारी चीज़ों में बहुत कमी है, ये है। अब सामने में तो ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे अभी भी वहाँ पे भी हीलिंग की ज़रूरत है। अब तो काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर सनातन धर्म। लॉट ऑफ पीपल आर रिसाइटिंग, लर्निंग, यू नो, मंत्रास, भगवद गीता, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन स्टिल सबकॉन्शियस लेवल में अभी भी हमें हीलिंग की ज़रूरत है। अभी भी, यू नो, we need to be proud of our roots, we have to heal the little wounds, क्योंकि ये वूंड ही है, यहाँ पे wounded warrior है हमारी भारत माता। चलिए देखते हैं, ये हमारे लिए गाइडेंस आ रहा है। नेक्स्ट 1 ईयर में हमें लगता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली इंडिया काफ़ी डेवलप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स फॉर मदर अर्थ, माँ भारती ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, माँ भारत फॉर द कमिंग 1 ईयर क्या होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं ब्लेसिंग्स। इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशली मैंने ये ओरेकल लिया है,
ओ वाओ, ये दोनों ही कार्ड्स ले लेती हूँ मैं. And let's see the cards, guys. I wanted to take one more. Let's see. Let's take one more. Because India is देव भूमि, तो इसीलिए मैंने ये वाला डेक लिया है ब्लेसिंग्स के लिए. Let's take this. कामदेवा. Okay. यहाँ पे क्या है? ये वाला तो कार्ड आना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यू नो दिस इज द कार्ड, दिस इज फ्रॉम विष्णु पुराण, जहाँ पे बोलते हैं वरा रूपी, यू नो महाविष्णु ने, वरा रूपी विष्णु ने अपने नथनों पे माँ पूरी की पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपने नथनों पे संभाल लिया था ना. एंड फ्रॉम देयर वी नो इट्स लाइक द अर्थ इज राउंड एंड इट इज़ नॉट फ्लैट. तो ये हमारे चालीसाज में ही लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, और इसको साइंस को खोजने में कितना टाइम लगा था. यू रिमेंबर दैट, नो? तो वराह देव क्या बोल रहे हैं नाउ? इंटरेस्टिंग, ये देखिए, वराह देव वही थे जिन्होंने अपने नथनों पे माँ मदर अर्थ को रख लिया था, और हम माँ भारती की बात कर रहे हैं. तो डू यू सी हाउ ऑल द कार्ड्स दैट आर कमिंग इज टेलिंग अस अबाउट माँ भारती, माँ दुर्गे, मदर अर्थ, लाइक दैट. सो मदर अर्थ भी आ गई है यहाँ पे. चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है. मंत्रा है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या है? बैनिशमेंट ऑफ फियर. एब्सोल्युटली, ये जो फियर है ना, और ये जो डेविल हमारा पावर लेता है, ये जो डेविल है कभी कभी हमारे सामने में भी आ जाता है. बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि पावर लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इंडिया हैज़ बीन दिस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड दे आर ऑलवेज, यू नो, देखिए मायन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, ये सारे ग्रेट सिविलाइजेशन को तोड़ दिया गया. एक इंडियन से ये सिविलाइजेशन ही है जो कि अभी तक चल रहा है, सनातन धर्म हमारा. और डेफिनेटली इसके बहुत सारे दुश्मन हैं. दे वॉन्ट टू टेक देयर पावर, दे वॉन्ट टू ब्रेक हर अपार्ट, बट दे हैव नॉट सक्सीडेड सो फार. और यहाँ पे देखिए, दे ऑलवेज ट्राई टू स्केयर हर ऑफ. और ये वाला कार्ड का आना और ये ब्लेसिंग्स आना, बैनिशमेंट ऑफ फियर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. दिस इज अ वुंडेड वॉरियर. इट इज स्टिल फाइटिंग, बट इट इज, यू नो, सब लोग उसकी पावर लेने की कोशिश करते हैं. मदर हमारी जो भारत माता, सब तरफ से, यू नो, पावर लेने की कोशिश. ऑल दीज जो इकोसिस्टम ऑपरेट होता है, दिस टूल किट गैंग जो ऑपरेट होता है एक साथ आके, कैसे ऑपरेट होता है, और उसको, यू नो, कैसे यू सी दैट हाउ दे अटैक, यू नो, ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ पे बैनिशमेंट ऑफ फियर, यानी कि जो भी डर है ना हमारे सबकॉन्शियस में, हमारी गुलामी की मानसिकता से आ रहा है, या फिर ये जो सारा कबाल है एक साथ अटैक करता है, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. देयर इज अ बैनिशमेंट ऑफ फियर. ये सारा जो डर है वो चला जाने वाला है आने वाले एक साल में. Protecting the world's ecology, and how beautiful is this, because India is always about Vasudhaiv Kutumbakam. She is never about I, me, myself. और यहाँ पे हम देख रहे हैं emotional quotient, emotional intelligence, soft power, how India is emerging as a soft power. And India's theory has always been, her mindset has always been Vasudhaiv Kutumbakam. And see how it is telling here, protecting the world's ecology. India wants to protect the world, and that is what being seen as a leader, Vishwa Guru. तो यहाँ पे दूसरी चीज़, ये तो फर्स्ट है बैनिशमेंट ऑफ फियर. ये जो भी फियर है हमारे, या तो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड गैंग है जो कि उसके पावर को अटैक करने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें चले जाने वाली हैं. हमारी अपनी जो डेविल मानसिकता है, जो एक, यू नो, सेल्फ डाउट है, वो चले जाने वाला है. प्लस, यू नो, प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के लेवल पे इंडिया काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा. एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, द लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ लुकिंग अप टू इंडिया. थर्ड ब्लेसिंग्स देखते हैं, इंटेलिजेंट यूज ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज. एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दिस. एंड क्योंकि ये सारी गाइडेंस इसीलिए आ रही है क्योंकि वराह रूपी जो विष्णु का अवतार था, वो इट वॉज ऑल अबाउट मदर अर्थ, क्योंकि मदर अर्थ को उन्होंने अपने नथनों पे संभाल लिया था. तो इट इज ऑल अबाउट मदर अर्थ. तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है. तो दिस इज बेसिकली अबाउट, यू नो, आई थिंक दिस स्पिरिट गाइड्स, एंड वी आर आस्किंग प्रेडिक्शंस फॉर इंडिया in the coming 1 year. And वरा रूपी विष्णु का आना with mother earth on his nostrils, यही बता रहा है emerging of mother India as विश्व गुरु. क्योंकि विश्व गुरु बनेंगे तो अब बस इंडिया का ही आपको टेक केयर नहीं करना है, आपको सारे
वर्ल्ड मदर अर्थ का, इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का, एनिमल्स का, ग्लोबल वार्मिंग का, ये सारी चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स पे काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं, राइट? तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही हैं। इंटेलिजेंट यूज ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, यू अंडरस्टैंड? ओके, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक, यार ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। एंड इंडिया विल इमर्ज एज अ लीडर हु विल हैव सोल्यूशन for all these problems of the modern world. All right. Freedom from fear of dirt and darkness. जी हाँ, freedom from fear of dirt and darkness. Do you see this devil and all the darkness around, जो कि इंडिया के सबकॉन्शियस लेवल पे हैं? ये स्ट्रांगली कि उसकी एक जो स्लेवरी, जो हम स्लेव्स रहे थे, जो हम गुलाम रहे थे, वो जो गुलामी की मानसिकता है, उससे हमें फ्रीडम ज़रूर मिलने वाला है। इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कमिंग अक्रॉस, फ्रीडम। एंड वी आर डूइंग दिस गाइडेंस ऑन मदर अर्थ, ऑन माँ भारती, भारत माता पे, ऑन 77th independence of India, and this is what it is: freedom from the fear of dirt and darkness. So हमारे सारे कार्ड्स जो हैं पॉजिटिव आए हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वेरी डार्क कार्ड एट आवर सबकॉन्शियस लेवल। पर क्योंकि ये देवभूमि है, माँ दुर्गे साक्षात आके हमको ब्लेस की हैं कि हमारे सारे सपने सच होंगे, जो भी विजन है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, एंड वी इंडियंस एज अ कलेक्टिव फॉर आवर कंट्री, बिकॉज इफ आवर कंट्री ग्रोज वी ऑल ग्रो इंडिविजुअली, डाइवर्सिटी, वी हैव दिस डाइवर्सिटी हियर। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, ब्लेसिंग, आश्वासन की फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस। तो ये जो भी डार्कनेस हमारे सबकॉन्शियस में है, जो कि हमारी बेड़ियां बन गई हैं, इससे भी हमें फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि साक्षात विष्णु का अवतार आके हमें ये ब्लेस कर रहा है। दिस इज ब्यूटिफुल। और हम ये वाला कार्ड लेंगे, वृंदा देवी। ओ वाओ, वृंदा देवी, हाउ ब्यूटिफुल। माँ तुलसी, गॉडेस ऑफ डिवोशन। लेट्स रीड दिस। A residence in a holy place. This is a holy place. We all know that India is a holy place. Proximity to natural beauty. Absolutely. We have all kind of, seasons. हमारे पास 4-5 तरह के seasons हैं. We see all kind of seasons. So yeah, that is it. Devotion to कृष्णा और विष्णु हमारे ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं वरा रूपी अवतार में। एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, ओ माई गुडनेस, दिस इज ब्यूटीफुल। बिकॉज अगर आप देखो कि अभी काफ़ी एक तरह का ना स्पिरिचुअल मूवमेंट सा चल रहा है, जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स, वी आर लर्निंग वेदास, भगवद गीता, ये सारी चीज़ें अब हम खुद कर रहे हैं, वी एज अ इंडियंस। जहाँ तो यहाँ पे वही है, फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर्स। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ने लगते हो तो आप फिजिकल वर्ल्ड से दूर जा रहे हो, तो फिजिकल वर्ल्ड से दूर जा रहे हो तो आप फिजिकल डिज़ायर से भी दूर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले 1 सालों में और आगे भी होगी, जहाँ पे वी विल मूव टूवर्ड्स आवर रूट्स, आवर कल्चर, वी विल मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वी विल मूव मोर टूवर्ड्स ascension. Beautiful. Success in love and romance, okay. Enhanced sexual performance, okay. Ability to amuse and make people laugh. So yeah, ability to amuse and make people laugh. It's the same thing like holding the stage. जहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, he is very good with people, he is very good with his vision, he is very good with communicating his vision in a very simple way where people not only enjoy but people also connect very easily. So you can hold the stage, you can hold the attention and you can create that bond. और वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, सक्सेस इन लव एंड रोमांस एंड एबिलिटी टू अम्यूज एंड मेक पीपल लाफ, यानी कि एबल टू कनेक्ट विथ पीपल। तो वी नो दैट मोदी जी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द पीपल, वेदर इट इज़ विद इन द कंट्री और वेदर इट इज़ आउटसाइड, राइट। सो ये सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स की तरह आ रही हैं। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ कमिंग, ओके। सो वी विल सी, बिकॉज हमने ये सारी रीडिंग कर ली है, तो हम क्विकली देख लेंगे कि वॉट वी नीड टू नो अबाउट Modi ji becoming Prime Minister in 2024. तो चलो हम ये देख लेते हैं जल्दी से।
and let's do this. So all the darkness will dissipate eventually. A lot of self-doubts, we as Indians. But the self-doubt will walk off. The way this card has, made an appearance, you all saw कि वो जितना भी डर था वो इस सूर्य की रोशनी में चला जाने वाला है. All right? And it's going to be end of all these phases, guys, okay? And we will be tapped into our power. Basically, sun is going to shine once again. चलिए देखते हैं. Dear angels, what do we need to know about Mr. Modi becoming Prime Minister of India in 2024? What do we need to know about Mr. Modi becoming Prime Minister of India again in 2024? Ace of Cups is a new beginning once again. There will be a lot of conspiracies, but here is the King of Cups coming again. It's going to be a new beginning. Okay. Ace of Wand, हमने पूछा what do we need to know about Modi ji becoming, Prime Minister of India once again in 2020 after 2024 election, and we have got a new term for Modi ji. यहाँ पे अगर आपने वो रीडिंग देखी होगी जहाँ पे लास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया था और हमने रीडिंग की थी क्या इस इंडिपेंडेंस डे से नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे का. तो लास्ट वाला कार्ड क्या था हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वो वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू किंग ऑफ पेंटिकल्स बिकॉज ही वाज विद अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स विद हिज विजन एंड प्लान ही इज एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द कंट्री ऑल्सो. सो लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ दोज economy really booming and all that. A new beginning for King of Pentacles. And yes, it will not come without challenges. There will always be those hidden Five of Sword agendas. Five of Sword आपको पता है ना, heating below the belt. Like there will always be एक new beginning ज़रूर आएगा. तो वो चीज़ें हैं. तो लगता है कि yes, मोदी जी will get a new, Mr. Modi will come for the next, will get a third term. There will be a new beginning. And yes, here he is making an entry as a King of Pentacles. And next 15th अगस्त को जब वो झंडा फहराएंगे, it will be as a King of Pentacles. There will be lot of abundance and prosperity under his belt. Yes, scheming तभी भी चलेगी. Scheming politics में चलता ही है. We all know that. But this is a big yes. What do we need to know about Mr. Modi coming as a Prime Minister of India after 2024 election? Yes, he will get a new beginning. Ace of Wands से फिर से वो अपनी पारी की नई शुरुआत करेंगे. A strong King of Pentacles, a big yes. So I think this is a very clear guidance. एक बार यहाँ से भी कार्ड ले लेंगे. What do we, dear angels, what do we need to know about Prime Minister Modi becoming the Prime Minister of India for the third time in 2024? And I get this card. Nataraj. And what blessings, Mahadev. श्रावण का महीना भी चल रहा है. महादेव क्या ब्लेसिंग कर रहे हैं? Fearlessness. Yes, he is a fearless reader. We know that. Joy of creativity. Yes. And क्या है? Perfection in the art of music and dance. Finding pleasure in all circumstances of life. So fearlessness. So is Mahadev telling Modi ji to go guns blazing without being fearless? क्योंकि fear की कोई ज़रूरत नहीं है. Go guns blazing. क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, there is some scheming happening here. There is some mean games happening over here. But मुझे लग रहा है कि नटराज, महादेव in the form of Nataraj, he is telling us fearlessness.
go guns blazing. So that is the guidance coming for Ma Bharti and our own Prime Minister Mr. Modi for the coming 1 year. अभी क्या कुछ चल रहा है और आने वाले 1 साल में क्या चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी, ऐसी चीज़ें हमें पता चलता है. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. I'll see you again. Take care. Bye for now, guys.